Good morning, student. This is Amit Tripathi, your physics teacher. Guys, you are welcome in my class. Guys, today topic is refraction of light. This topic is very important for the study of lens and image formation by the lens, and also for these topics there are 2 or 3 marks questions will come in your board examinations. So we will start today topic. Guys, you all are know the light will travel in straight line in a transparent medium, but if the light will goes from one transparent medium to second transparent medium, also it will follow the straight line path or not. This is the questions and some basic phenomena which you will observe in your daily life that shows a different types of phenomena. That phenomena is called the refraction of light. What is the different types of happening in your daily life? I want to told you the first one is, if you put a thick glass slab on a letter paper जिस पे कुछ भी लिखा हो, when you put the thick glass slab on the paper, the size of the letters will be raised. Clear? Second, you take a bucket which is filled with water, the bottom surface of bucket will be appears as a raised. Clear? Also, you take a lemon and you put on a glass bowl, transparent glass bowl, and fill the water. When you look the lemon from the outside of the bowls, glass bowls, you find that the size of the lemons will appears the larger than its original size. Guys, all these phenomena, the only one cause, that is the refraction of light. Clear? So we start the topic, that is the refraction of light. Suppose that there are 2 transparent medium, or we write here, there are 2 transparent medium. This is the medium 1, this is medium 2. Clear? This line is the interfacing line of these 2 transparent medium. ये लाइन जो आपकी रिप्रेजेंट हो रही है, ये दोनों मीडियम की इंटरफेसिंग लाइन है, मीन दोनों की सेपरेशन लाइन. क्लियर? सपोज दैट ए लाइट विल कम फ्रॉम a source and it travel in first transparent medium, and it will goes from first transparent medium to second transparent medium. Clear? क्या ये लाइट जो फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर कर रही है, वो सेम पाथ को फॉलो करके स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, आइदर इट विल बी डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. Guys, we observe the light will deviated from its original path. Clear? ये देखिए हमने इसको शो किया, ये इसकी ओरिजिनल पाथ है. This is the original path of light, but light will be bent or deviated from its original path. Clear? This phenomena is known as the refraction of light. Then how you define the definition? When light is goes from one transparent medium to another transparent medium, it is
deviated from its original or actual path, this phenomena is called refraction of light. Okay guys, this is the definition. When light goes from one transparent medium to another transparent medium, it is deviated from its original or actual path. This phenomena is called the refraction of light. Okay, ये देखिए, ये एक फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम था, दिस इज द सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम. फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट आपकी सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रही है और ये लाइट अपनी ओरिजिनल पाथ से बेंड हो रही है. क्लियर. अब ये ओरिजिनल पाथ के एबव भी बेंड हो सकती है और इस साइड भी बेंड हो सकती है. ये कैसे आप डिसाइड करेंगे, इसका डिस्कशन हम लेटर अभी करते हैं. ओके, व्हाट इज द काज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. क्लियर. द रीजन बिहाइंड दिस, दैट मीन्स कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ light. Cause of refraction of light, because the speed of light is different in different transparent medium. The speed of light is different in different transparent medium. जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम आपके हैं, उन ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है. दिस इज द रीजन, दैट्स वाई the light will be deviated from its original path when it goes from one transparent medium to another transparent medium. Okay, the speed of light in the transparent medium is decided by the optical density of that transparent medium. Then how you decide the optical density? Optical density, the ability of medium to refract the light is called optical density of that transparent medium. The ability of medium to refract the light is called the optical density of that transparent medium. Guys, this is the basic information about the refraction of light. What is the definition, what is the cause, and what is the optical density. Clear. The next topic and most important topics, law of refraction of light. Law of refraction of light. Guys, you all are know the law of reflection of light. इससे पहले हमने आपको बता रखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब हम आपको बताने चल रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. यू ऑल आर नो about the law of reflection of light. There are two laws and also there are two laws for refraction of light. The first one is the light incident ray and the refracted ray. Refracted ray means the light which is bent in second medium. अगर हम ये सपोज करें कि ये इसकी ओरिजिनल पाथ है, ये लाइट की ओरिजिनल पाथ है और आपकी जो लाइट सेकेंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है उसका पाथ ये है. ये इंसिडेंट रे हो गई, दिस इज द इंसिडेंट रे
this is refracted ray. Clear? This is the normal. ये आप सब जानते हैं. Clear? The statement, first statement, that means first law, incident ray, refracted ray, normal at interface of two transparent medium at point of incidence all lie in same plane. Clear? So first we write here first rule, rule 1, in same plane. Clear? Rule number 2, rule number 2, the ratio of angle of incident and angle of refraction is constant. Is constant. This is, or this law is known as Snell's law of refraction. क्लियर? इसका एक सेकेंड नेम भी है, वो क्या है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? क्लियर? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle between incident ray and the normal, this is known as the angle of incident. It is represented by small I. And the angle between normal and the refracted ray, this is known as the angle of refraction. Clear? The ratio of, sorry, यहाँ एक point और होगा, the ratio of sine, sine means trigonometric function होगा ये. The ratio of sine of angle of incident and angle of refraction is constant. This is known as Snell's law. यहाँ आप modify कर लीजिएगा. The ratio of sine of angle, that is sine I upon sine R. This is equal to constant. This is equal to constant. And this constant is represented by the refractive index, the term that is the refractive index. That means this constant is known as refractive index. Refractive index of the medium. Clear? It is represented by, it is represented by n or mu. Clear? It is represented by n or mu. Clear? This is the rules for law of refraction of light. क्लियर? अब इस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टर्म है उसको हम और डिटेल में स्टडी करते हैं. ओके? क्लियर गाइस? गाइस, द टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, साइन आई अपॉन साइन आर is equal to the constant, and that is known as the refractive index. It is represented by n, and this n is represents the refractive index of second medium with respect to first medium, and in the notation it will be represented by n to 1. Clear? n to 1. What is the meaning of n to n? n to 1, where
N21 is the refractive index of second medium with respect to फर्स्ट मीडियम। क्लियर? इसकी मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर? अब इसके नोटेशन को हम चेंज कर रहे हैं। इसकी नोटेशन में आपके बुक में कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू के टर्म में लिखेंगे तो एन के प्लेस पे म्यू हो जाएगा, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये जितने भी नोटेशन है ये आपकी बुक में डिफरेंट मिलेंगे, बट जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो है N21, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसका नोटेशन ऐसा भी आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, तो आप नोटेशन से कंफ्यूज मत होइएगा, नोटेशन कोई भी हो, मीनिंग क्या है ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए इसी फार्मूले को हम चेंज करते हैं। ये तो आपका एक फार्मूला बन गया, इस पे बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया कि ये आपका फर्स्ट फार्मूला। क्लियर? सेकेंड हम यूज करते हैं। अभी आपकी लाइट रेस मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर कर रही थी, तो अगर सपोज दैट यही जस्ट अपोजिट हो जाए, दैट मीन्स अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ कि अब ये लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही होगी। ठीक है, तो इसका अपोजिट आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। मीन्स अगर आप इसी को जस्ट चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट आपकी सेकेंड मीडियम से इंटर हो रही है, कहाँ जा रही है, फर्स्ट मीडियम में जा रही है, सेकेंड मीडियम से इंटर हो रही है, तो ये अब आपका आर कैसा बिहेव करेगा, एज लाइक ए इंसिडेंट एंगल। तो दैट मीन्स दिस इज द साइन आर अपॉन sin I. This is the second formula. Clear? Okay guys, next suppose that this is the equation number 2. Multiply equation 1 and equation 2. Multiplying equation 1 and equation 2, we find that N21 multiplied by N12, that means refractive index of second medium with respect to first medium into refractive index of first medium with respect to second medium is equal to, ये किसके इक्विवेलेंट है, sin I upon sin R multiplied by sin R upon sin I। देखिए ये साइन आर कैंसिल, साइन आई कैंसिल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्विवेलेंट हो गया, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर? दैट मीन्स अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड के रिस्पेक्ट में दिया है तो आप उसका जस्ट अपोजिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water with respect to air is equal to 1.33. Clear? Then find the refractive index of air with respect to water. ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये फार्मूला यूज करिए,
एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के रिस्पेक्ट में दिया है, तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के मीडियम में पूछ रहा है। यहाँ पे आपका मीडियम 1 कौन सा है? मीडियम 1 आपका हो जाएगा एयर। मीडियम 2 कौन सा हो जाएगा? मीडियम 2 हो जाएगा वाटर। क्लियर? ये फॉर्मूला यूज करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम पूछा है, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर। विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम कौन सा है? वाटर। दिस इज इक्वल टू द 1 अपान में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसकी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज इक्वल टू 1 अपान में 1.33। क्लियर? दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.75। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। Next point, refractive index of the medium in term of velocity. We suppose the speed of light in first medium, that is the v1, and speed of light in second medium, that is v2. Clear? Then what is the refractive index of second medium with respect to first medium in term of velocity or speed of light? That is refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is represented by refractive index of second medium with respect to first medium is equal to speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. Clear? This is equal to speed of light in medium 1 क्या है? v1. This is v1 upon में speed of light in medium 2, this is v2. ये आपका हो गया स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ second medium with respect to first medium. Formula number 4. Again, if you want to the refractive index of first medium with respect to second medium with respect to second medium, then that is refractive index of first medium with respect to second medium is equal to, यहाँ देखिए जब आपका N21 था सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो आपने फाइंड आउट क्या किया था? v1 अपान में v2। जस्ट इसका अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट in second medium upon में speed of light in first medium. This is the next formula of refractive index in term of speed of light. Clear? Suppose that for example the speed of light in first medium is equal to 2 into 10 to the power 4 meter per second, and speed of light in second medium is equal to 1 into 10 to the power 2 meter per second. Clear? 1 into 10 to the power 4 meter per second. Then what is the refractive index of second medium with respect to first medium? वैल्यू को आप पुट करेंगे, फॉर्मूला आपके पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपान में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. पुट द वैल्यू ऑफ v1 इज 2 इंटू 10 to the power 4 upon value of v1 1 into 10 to the power 4. 10 to the power 4 cancel out, this is equal to 2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज 2. सपोज दैट आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा आल्सो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम. क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता तो आप क्या करते हैं? आपके पास दो फॉर्मूले हैं, आइदर यू विल यूज दिस फार्मूला और जो भी हमने पहले बताया था
we know that since you all are know refractive index of first medium with respect to second medium is equal to the 1 upon में refractive index of second medium with respect to first medium, इसकी वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 upon में 2 इज इक्वल टू 0.5. क्लियर, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ये आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर, तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है ये क्वेश्चन में आपके गिवन होगा. हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का दिया हो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में और कोई एक वेलोसिटी दी हो, किसी जिस मीडियम की वेलोसिटी नहीं दी गई वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. क्लियर, तो आप ये फॉर्मूले का यूज करके लगा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं. वी सपोज दैट the medium 1 is air or vacuum. We suppose the first medium is air or vacuum, and you all are know the speed of light in air or vacuum, this is equal to the 3 into 10 to the power 8 meter per second. क्लियर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल सी से. दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द वैक्यूम, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड से. इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, इस वैल्यू को आप यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. फर्स्ट मीडियम आपका है क्या, एयर और वैक्यूम, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से. This is equal to the speed of light in first medium. Speed of light in first medium, that is the speed of light in air or vacuum, 3 into 10 to the power 8. That means it is represented by C is equal to C upon speed of light in second medium. हमने इसको सपोज किया क्या है, V2. This is equal to V2. क्लियर, अगर हम इस V1 और V2 के टर्म को रिमूव कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हम सपोज करते हैं ये कोई मीडियम है, तो इसको हमने सपोज किया सेकेंड मीडियम जो आपका है उसका, उसमें जो वेलोसिटी है वो क्या है, Vm. तो ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम. दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला और फॉर्मूला नंबर 6. Clear, and this refractive index is known as the absolute refractive index. This is known as absolute refractive index. Clear, how you define the absolute refractive index? Definition आपसे पूछी जाती है, the refractive index of the medium with respect to air or vacuum is called absolute refractive index. Clear, this is called the absolute refractive index. Okay, suppose that from the formula number 6, speed of light in air C, that is the always constant. Clear, तो यहाँ से अगर आप refractive index of the medium और velocity of the light in the medium आप find out करेंगे तो आपको relation मिलेगा. यहाँ लिख सकते हैं since C is constant, so velocity refractive index, absolute refractive index of the medium is equal to the, or it is proportional to the 1 upon में speed of light in the medium. This is the important relation. Clear, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा. क्लियर, देखिए यहाँ पे हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. क्लियर, इफ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर
greater in comparison to second medium, the speed of light is less in comparison to second, और अगर इसकी वैल्यू लो होगी आर मिनिमम होगी तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, हाई होगी। क्लियर। इसी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं द मीडियम इज आइदर रेयरर मीडियम और आइदर इट इज डेंसर मीडियम। क्लियर। तो रेयरर मीडियम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम में सेम कंडीशन है। सपोज दैट आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं और क्राउडेड फील्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सेम कंडीशन लाइट की भी है। जिस भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ग्रेटर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी, वो मीडियम आपका बिहेव करेगा एज लाइक ए डेंसर मीडियम। वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्लो होगी। और अगर क्राउडेड फील्ड नहीं है, खाली जगह है, तो आप वहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, बहुत तेजी से मूव करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वो क्या होगा, हाई होगा। क्लियर। तो आप रेयरर और डेंसर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर, the medium is higher in comparison to second medium. Clear. And if the value of refractive index is less in comparison to second, that medium is the behave as like a rarer medium. In term of velocity, जिसका refractive index greater होगा उसकी velocity क्या होगी, less होगी, और जिसका refractive index less होगा उस medium में velocity क्या होगी, greater होगी। क्लियर। तो अभी देखिए इस पे हम एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं आपको समझाने के लिए। सपोज दैट एनी मीडियम x हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33 एंड ए सेकेंड मीडियम दैट इज द y हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.34। क्लियर। विच मीडियम इज बिहेव एज लाइक ए डेंसर एंड विच इज रेयर। द क्वेश्चन इज विच इज रेयर। क्लियर। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन करेंगे। ये देखिए रिलेशन आपको मिल रहा है। क्लियर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, लेस होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ग्रेटर होगी। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 1.33 दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स एंड 1.34 दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium y. You find for on the comparison you find the refractive index of medium x is less than the refractive index of medium y. क्लियर। तो हमने आपको बताया था अगर सेकंड किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के कंपैरिजन में लेस होगा तो फर्स्ट मीडियम आपका होगा क्या, डेंसर, और सेकंड होगा रेयरर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस है वो मीडियम कैसा बिहेव करेगा, रेयरर मीडियम बिहेव करेगा। ये मीडियम आपका होगा रेयरर मीडियम और ये मीडियम कैसा होगा, डेंसर मीडियम। ठीक है। y डेंसर है किसके कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में। x रेयरर मीडियम बिहेव कर रहा है किसके कंपैरिजन में, y के कंपैरिजन में। सपोज दैट यहीं पे कोई और एक थर्ड मीडियम दिया होता जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, उसकी वैल्यू है 1.42। क्लियर। अब इसमें तीनों में आप कंपैरिजन करेंगे तो इन तीनों में कंपैरिजन करने में आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम थर्ड is greater than the medium y and also medium x। तो इन दोनों के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो मीडियम z जो आपका होगा ये बिहेव करेगा एज लाइक ए डेंसर मीडियम। x और y दोनों z के कंपैरिजन में रेयरर मीडियम बिहेव करेंगे। बट अगर आप इस डेंसर का इससे कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ny is less than the nz that means refractive index of the medium z। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होगा वो मीडियम कैसा होगा, रेयरर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर वो मीडियम कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा। गाइज इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। और जस्ट इसका अपोजिट आप वेलोसिटी के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रेयरर मीडियम है तो वेलोसिटी कैसी होगी, हाई होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, लो होगी, इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी क्या होगी, इसकी हाई हो जाएगी,
ये वेलोसिटी हाई होगी और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें दोनों में रिलेशन आपको पता चल गया। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो पता चल गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स फॉर्मूला ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सपोज दैट the refractive index of first medium is n1 and the refractive index of second medium that is the n2। ये आपका है दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। क्लियर, आप बिल्कुल में भी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए कैसे, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in term of refractive index of the medium, in term of refractive index of the medium. Suppose that the refractive index of first medium, the refractive index of medium 1 is equal to n1, the refractive index of medium 2 is n2, then the refractive index of second medium with respect to first medium is equal to। क्लियर, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए, एक वर्ड इसमें आया क्या, विद रिस्पेक्ट टू, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप यहाँ नीचे रखेंगे और जिसका पूछा है उसको आप ऊपर कर देंगे। ये फार्मूला आपको मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। दिस इज द फार्मूला नंबर आई थिंक 8 होगा। क्लियर, और जस्ट इसका अपोजिट पूछा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, सेकंड के, तो वैल्यू आपकी हो गई n2, किसका फाइंड आउट करना है, फर्स्ट का। क्लियर, अब आप ये फार्मूला चेक कर सकते हैं कैसे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर कहीं पे ऐसा लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसका मतलब दैट रिप्रेजेंट्स द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। और आपको फार्मूला पता है, n1 की वैल्यू दैट मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c अपान में v1, n2 की वैल्यू दिस इज इक्वल टू c अपान में v2, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगा क्या, n2 अपान में n1, n2 की वैल्यू क्या है, c अपान v2 अपॉन c अपान v1, c से c कैंसिल आउट, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, v1 अपान में v2। अभी आपने ये फार्मूला फाइंड आउट किया था, दिस इज इक्वल टू v1 अपान में v2, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। क्लियर, सेम ऐसे आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ये दोनों फार्मूला एक जैसे हैं। ये फार्मूला नंबर आपका हो गया टोटल 9। क्लियर, इस पे बेस्ड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिस इज इक्वल टू 2.42 and suppose the refractive index of glass is equal to 2.0. Clear, then find the refractive index of diamond with respect to glass, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दैट मीन्स ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्वेश्चन पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास,
ठीक है। तो फार्मूला आपके पास है, फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, जिसका पूछा गया है उसको आप रखेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा ND, वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 2.42 अपान में 2.0, दिस इज इक्वल टू 1.21। ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दिस इज इक्वल टू 1.21। क्लियर, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, तो एक बार हम आपके सारे फार्मूले आपके बोर्ड पे लिखते हैं, उसको आप देख लीजिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए। फार्मूला नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इक्वल टू साइन I अपान साइन R। Second, refractive index of first medium with respect to second medium, this is equal to sin R upon में sin I. In term of velocity, refractive index of second medium with respect to first medium is V1 upon में V2. Fourth, refractive index of first medium with respect to second medium is equal to V2 upon में V1. Fifth, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1 अपान में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। क्लियर। फार्मूला नंबर 6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज इक्वल टू C अपान में स्पीड ऑफ लाइट इन द medium. What is the relation between refractive index of the medium and velocity? This is reciprocal of the speed of light in the medium. Clear. Formula number 8, refractive index of the second medium with respect to first medium is equal to the refractive index, absolute refractive index of second medium upon absolute refractive index of first medium. Clear. Formula number 9, refractive index of first medium with respect to second medium is equal to the absolute refractive index in first medium upon refractive index of second medium. ये टोटल 9 फार्मूले आपके पास हैं और इस फार्मूले को आप लर्न कर लेंगे और इस पे बेस्ड एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू गाइज।